شیخ چلی نے چند ماہ ایک حکیم جی کے پاس کام کیا کر لیا تھا کہ خود کو حکیم سمجھنے لگے۔ انہوں نے گھر کی ایک کمرے میں باقاعدہ ایک دوا خانہ کھول لیا۔ اماں نے لاکھ سمجھایا، ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا تجھے، کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے ہیں؟ کسی کو الٹی سیدھی دوا دے دی تو پھانسی چڑھ جائے گا، اور میرا کیا ہوگا؟ اماں کیا ہو گیا بھائی آپ کو، جب دیکھو پیچھے پڑی رہتی ہیں، الٹی سیدھی حرکت۔ اماں ہم بیوقوف ہیں، ہمارے ماتھے پہ لکھا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں۔ ہم نے اتنے مہینے کام کیا ہے حکیم جی کے پاس، ہمیں سب پتہ ہے کہ مرض کیا ہوتی ہے اور دوا کیا ہوتی ہے اور مرض کو کیسے پکڑنا ہے۔ اماں اب تو بس آپ نوٹ گننے کی تیاری کریں، آپ کا بیٹا حکیم ہو گیا ہے۔ محلے میں جا کے بتا دیں سب کو کہ آپ کا بیٹا شیخ چلی حکیم ہو گیا ہے۔ اب آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں، اب ہم حکیم جی سے بڑا گھر بنائیں گے اور ان سے بڑا مطب بنائیں گے، دیکھ لیجئے گا آپ۔ ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے، ابھی آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کیا کیا کرتا ہے۔ شیخ چلی نے مطب تو کھول لیا۔ اب کافی دن تک وہ انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی مریض نہ آیا۔ ایک دن ایک بزرگ کانپتے کانپتے مطب میں داخل ہوئے۔ ابے کہاں ہے بھائی؟ اے چھوکرے چل جا، حکیم کو بلا کے لا۔ کیا ہو گیا بزرگو، تشریف رکھیے، ہم ہی تو ہیں حکیم شیخ چلی۔ ابے مجھے کیا پتہ بلی ہے یا چلی، یہ مجھے نہیں پتہ بھائی، میرے پیٹ کو چیک کر لے بھائی، بہت درد ہو رہا ہے، ایسا اینٹھن ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے ابے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دھوبن جو ہے وہ ہمارے پیٹ کی آنتوں کو نچوڑ رہی ہے۔ بزرگو دھوبن ہی کیوں، دھوبی بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں بکواس بند کر لے بھائی، یہ مثال دی ہے میں نے، سمجھ رہا ہے؟ ابے مثال کو مت پکڑ، تو مرض پکڑ میرا۔ آپ بیٹھیے، غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بیٹھیے تو، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹھیے نہیں، دراز ہو جائیے۔ کیا بول رہا بھائی، دراز کیوں ہو جاؤں؟ ہے کہ بیٹھے بیٹھے تو میرے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا؟ دراصل بات یہ ہے بزرگوں کہ آپ کے پیٹ پر بل بہت ہیں اور مجھے ناف ڈھونڈنے میں ذرا پریشانی ہو رہی ہے، تو اگر آپ لیٹیں گے تو آپ کا پیٹ آزادی سے اوپر آ جائے گا اور ہم آسانی سے چیک کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ بتا کہاں لیٹنا ہے، کہاں لیٹنا ہے یہ بتا دے۔ آئیے آئیے، یہاں 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 یہاں۔ ابے ابے ہائے۔ شیخ چلی نے مٹھی کا مکہ بنایا اور بزرگ کے پیٹ پر گھمانا شروع کر دیا۔ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ گدگدی ہو رہی ہے بھائی، ہنسا بھی نہیں جا رہا، میں گدگدی۔ ابھی کیا کر دیا؟ ابے تو نے تو مکہ مار دیا، ابے میرے زخم بھاڑ دیے ظالم۔ ابے یہ کون سے چیک اپ کر رہا تو؟ ابے ظالم۔ بزرگو خاموش ہو جائیے، پکڑ لیا میں نے، پکڑ لیا۔ ابے کیا پکڑ لیا تو نے؟ ابے کیا پکڑ لیا تو نے بھائی؟ بزرگو میں نے بزرگو آپ کا مرض پکڑ لیا۔ یہ دھوبن نہیں ہے، یہ تو گیس ہے جو آپ کے پیٹ میں چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ ابے مجھے نہیں پتا چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، کیا کر رہی تھی بھائی؟ پکڑ لے اس کو، پکڑ لے اس کو، کیا کر رہا ہے تو؟ شیخ چلی نے فوراً بزرگ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں جھٹکے سے کھینچا اور ان کے ہاتھوں کو ان کے پیروں سے لگانے لگے۔ بزرگ چیخے، میں کیا کر رہا ہے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا پیٹ پھاڑ دے گا بھائی، تو پیٹ دبا دیا، میرا دم گھٹ رہا ہے بھائی، ابھی کیا کر رہا ہے؟ شیخ چلی نے انہیں جھٹکے سے چھوڑا اور فوراً دوڑے گئے اور مطب میں پڑی ہوئی الماری میں مختلف شیشیوں کو ٹٹولنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے سفید اور سیاہ صفوف کی 2 پڑیاں بنائیں اور بزرگ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لیجئے جناب، یہ ہے بہت ہی مقوی غذا، مقوی دوا۔ اسے آپ بزرگوں ایسے کیجیے گا، ہر کھانے کے بعد جو ہے نا وہ چٹکی بھر پانی سے پھانک لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ ابے پتہ نہیں افاقہ ہوتا ہے یا کیا فاقہ ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ اچھا دے کھا کے دیکھوں گا۔ ارے کہاں چل دیے بزرگو، یہ مفتہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ مفتہ نہیں ہے بزرگو، یہ دوا ہے، پیسے دیتے جائیے۔ اچھا یہ لے پیسے بھائی، لے۔ ابے اتنے پیسے کائے کو لے رہا ہے؟ بزرگو پیسے تو ہوں گے نا، کچھ پیسے جو ہیں وہ ہوا پکڑنے کے
और कुछ दवा देने के तो पैसे तो बनते हैं। अबे ले ले बस, तू मेरी जान छोड़ दे भाई। शेख चिल्ली पैसे लेकर अम्मा के पास दौड़े और अम्मा को पैसे लहरा लहरा कर दिखा कर कहने लगे, देख लिया अम्मा अपने बेटे को, कैसी दवा दी है उन्हें बुज़ुर्गों को, एकदम से मर्ज पकड़ लिया हमने जड़ से। चले गए बुज़ुर्ग, अब कल आएंगे हमें दिखाने। हाय मैं सदके जाऊँ मेरे बच्चे के, किस कदर मेरा बच्चा होनहार है। अरे मैं तो ऐसी खामखा तुझे बद्दुआएं देती रही। अरे मुझे क्या पता कि मेरा शेख चिल्ली इस कदर कमाऊ पूत हो गया। मेरा बेटा पैसे दे दे मुझे, सारे के सारे दे दीजो हैं। ये लो अम्मा, आप भी क्या याद रखोगी, सारे पैसे रख लो, लेकिन अम्मा बाज़ार जाओगी ना, बर्फ़ी ले आना मेरे लिए। हाँ ये मेरे बच्चे क्यों नहीं लेकर आऊँगी बर्फ़ी है, सबको बता कर भी आऊँगी कि अब उन्हें अगर कोई बीमारी हो तो मेरे शेख चिल्ली के पास आए इलाज करने। अगले दिन बुज़ुर्ग जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से दाखिल हुए मतब में और बोले, अबे दवा ने तो काम किया हकीम तेरी, लेकिन मसला एक और हो गया है। हाँ बताइए। वो आपकी तेज़ रफ्तारी से हमें लग रहा था कि दवा ने काम किया है, लेकिन मसला क्या हो गया है अब? मसला ये हो गया है भाई कि भाई हकीम, मसला ये हो गया कि हवा की गैस की रफ्तार बढ़ गई है निकलने की। अबे ये भी कोई बात है बुज़ुर्गों, हमने तो आपको मुकव्वी दवा इसलिए दी थी कि आपके पेट का हुदूद अरबा भी कुछ कम हो जाता, तो हमने आपको इसलिए दवा दी। और अगर गैस निकल ही रही है तो मेरे ख़्याल में तो कोई बुरी बात नहीं है बुज़ुर्गों। देखिए मसला ये है कि मुल्कों मुल्कों गैस कम हो रही है, और इस तरह अगर निकल रही है तो आप मुल्कों के ज़खायर में इजाफ़ा कर देंगे। अम्मा बकवास मत कर भाई, देख तू इलाज किया कर, तो फालतू की बात बहुत करता है भाई, और मेरा दिमाग जो है ना वो सिटक जाता है। मैं बता रहा हूँ तुझे, काम की बात कर, काम की। बैठिए, आप गुस्सा बहुत करते हैं। ये लीजिए, ये 2 पुड़ियाँ रख लीजिए आप, और इन पुड़ियों को खाइएगा, इंशाअल्लाह आपको अफाका होगा। बुज़ुर्ग चले गए और पैसे शेख चिल्ली ने ऐंठ लिए। अब तो शेख चिल्ली इस कदर खुश थे कि उनके एतमाद में दुगना और तिगना इजाफ़ा हो गया। अगले रोज़ धड़ाम से दरवाज़ा खुला और बुज़ुर्ग को 2 तड़ंगे हट्टे कट्टे लड़के दोनों बाजुओं से थामे लेकर आए। अबे 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 नाज जाए तेरा, अबे ये तूने कैसी दवा दे दी मुझे हैं शेख चिल्ली। अबे तूने कम बहुत कैसी दवा दी, रात भर बैतुल खला के चक्कर लगाए हैं मैंने, घुटने जुड़ गए मेरे तो, आया टांगे जुड़ गई। अबे अब तो दम ही नहीं रहा मुझ में, दम निकले जा रहा है। अबे हकीम, ये कौन सी दवा दी है तूने? हमारे अब्बा को अदमुआ कर दिया। तमीज़ से बात कीजिए, हम हकीम जी हैं, हकीम जी। और हमने जो दवा आपके अब्बा को दी है ना, वो कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है, बहुत खालिस नुस्खा दिया है हमने। बैठिए, अगर जो बैतुल खला के चक्कर लगाए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अभी आपको ऐसी दवा देंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल आपके पट्टे जो हैं वो सुकड़ गए हैं, उनको खोलने की ज़रूरत है। आप यहाँ दराज हो जाइए। अबे क्या करूँ? अबे अच्छा ठीक है। जैसे ही बुज़ुर्ग बैठे, शेख चिल्ली ने आओ देखा ना ताओ उनकी टांगें खींचकर सीधी करने की कोशिश की और बुज़ुर्ग धड़ाम से तख्त पर गिरे और वो चीखे, अबे मेरा सर फोड़ दिया इसने, अबे मेरा सर फोड़ दिया, अबे मैं गया। शेख चिल्ली ने उनकी एक ना सुनी और ज़ोरदार तरीके से उनकी टांगें खींचते रहे। वो बुज़ुर्ग चीखे, अबे क्या कर रहा है, अबे इसने तो मेरी जोड़ी खोल दिया, अबे भाई हड्डियों के पटाखे फोड़ दिए, अबे क्या कर रहा है, अबे खींचे जा रहा है, अबे बचाओ मुझे, अबे 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 चुन्नू मुन्नू, अबे क्या देख रहे हो, तुम्हारे बाप की जान निकाल रही है और तुम वहाँ खड़े हो, अबे मुझे तो बचा दो। अबे हट यहाँ से, हमारे अब्बा को अदमुआ कर दिया। अबे वो क्या, अबे अब्बा बेहोश होने वाले हैं। अरे बेटा, अबे मेरा तो आखिरी वक्त चल रहा है, सांस अटक गई हलक में। अबे अम्मा का ख्याल रखना, तुम्हारे अब्बा गया अब। ओह अबे क्या कर दिया, अबे अब्बा को क्या कर दिया इसने। अबे अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लो इसका टैंटवा, इसको नहीं छोड़ना, इसको जेल लेके जाएंगे।
अरे अरे भाई मैंने क्या किया, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक है भाई। मैंने तो उनके पट्टे खोल रहा था, दरअसल अकड़न आ गई थी। अबे भाई मुझे मार क्यों रहे, खुदा के लिए छोड़ दो। अम्मा, अबे अम्मा कहाँ है तू? अम्मा तेरे बच्चे को मार रहे हैं ये। अबे अम्मा, अम्मा, अम्मा बचाइए अपने बच्चे को। आई क्या हो गया है? आई क्या हो गया? आई काहे को मारे मेरे बेटे को? आई क्या कर दिया मेरे बेटे ने? हैं? हाँ, अरे क्या कर दिया तुमने? आई हटो। अम्मा ने झाड़ू उठाई हुई थी, अम्मा ने झाड़ू घुमाना शुरू कर दी। अम्मा बहुत तुम्हारा बच्चा चूज़ा नहीं है, ये मासूम सा। आई चूज़ा नहीं है तो तुमने पकड़ काय को रखा? ये मुर्गा है ऐसे दबोच रखा है मेरे बच्चे को। ये आपका बेटा जो है ना अम्मा, इसने हमारे अब्बा को मार दिया। समझ रही हैं आप? ये चूज़े के मुंह वाले ने हमारे अब्बा को मार दिया। इसने तो तशद्दुद किया है। हम रिपोर्ट लिखवाएंगे, हम तो थाने लेके जाएंगे इसको। आए हटो यहाँ से कमबख्तो, क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? और तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ? लेटे हुए सीधे टांगे पसार के खड़े। आय हाय मेरे बच्चे को कैसा मार रहे हैं? आय हाय, आय हटो यहाँ से। अम्मा ने झाड़ू घुमाई और उसके बाद अम्मा ने अपने दुपट्टे से नस्वार की एक पुड़िया निकाली। ये सुर्ख रंग की नस्वार थी और जाकर उनके अब्बा के नाक के सामने रख दी और उन्हें खूब सुंघाई। थोड़ी देर बाद अब्बा छींकते हुए उठे। अबे मुझे मार दिया। अबे क्या कर लिया? ओए अबे सांस अटकी जा रही है। अरे उठो कहीं के बुड्ढे पाखंडी हैं। आई तेरी वजह से मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। तू तो हट्टा कट्टा है? और किस कदर झूठ बोल रहे हो तुम मुस्टंडो, कि तुम्हारे अब्बा को मेरे बेटे ने दवा दे दी ऐसी। आइए तो मुस्टंडा लगा हुआ है हट्टा कट्टा। आय हटो। आय हाय देखो मेरे बच्चे के कैसा सर फोड़ दिया। अब तो थाने में जाऊंगी। आय हाय मेरे बच्चे के सर से खून के फव्वारे छुड़ा दिए इन्होंने। आई जालमों ने कैसी पेट में लाते भी मारी है मेरे बच्चे के। हाय हाय धुआं कर दिया। शेख चिल्ली की अम्मा शेख चिल्ली के मुंह को हाथों में लिए लट्टू की तरह कभी यहाँ घुमा रही थी, कभी वहाँ घुमा रही थी। थोड़ी देर में शोर गुल सुनकर पूरे महल्ले वाले जमा हो गए। अब तो अम्मा ने और दुहाई मचा दी। आय हाय देख लो भाइयों, आय हाय देखो बच्चों, मेरे बेटे को कैसा मार दिया, मेरा मासूम सा लाल, मेरा शहजादा। आय 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 मेरे शहजादे का देखो सर फोड़ दिया उन्होंने, फव्वारा छूट रहा है। आय हाय अब मैं थाने जाऊंगी। जल्दी चलो मेरे बेटे को स्टेशन ले आओ। आय हाय मेरे बेटे को लेके चलो भाई, थाने लेके चलो, रपट करवाऊंगी। अरे अम्मा क्या हो गया? तुम तो उल्टा हम पे पड़ गई। तुम्हारे बेटे ने तो हमारे अब्बा पे तशद्दुद किया है। अबे ये कोई हकीम है? ये तो नीम हकीम है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं भाई? अरे हटो कमबख्तो, तुमने तो मेरे बेटे के फव्वारे छोड़ दिए खून के। आए उसके अंदर तो वैसे ही खून नहीं था, मासूम सा नाजुक मेरा बच्चा। आय हाय मैं तो थाने जाऊंगी, मैं तो रपट लिखवाऊंगी भाइयों। महल्ले वालों ने दरमियान में पड़ के बीच बचाव कराया और दोनों पार्टियों में सुलह करा दी। अब अम्मा का गुस्सा भी कुछ ठंडा हो गया, लेकिन बुज़ुर्ग जो है वो उठे और अम्मा से कहा, गुस्सा मत कीजिए, बस अब बात को जाने दीजिए। अब शोर मचा रही हैं आप। हाँ हम अगरचे कि आपके बेटे ने तशद्दुद किया। अब्बा आप मत बोले भाई, आपकी तबीयत सही नहीं। अब्बा आप छोड़ें, आप रहने दें। लेकिन एक बात है अम्मा जान, वो जो आपने नस्वार हमें सुंघाई थी बड़ी ही कारगर साबित हुई, बड़ी मुफीद है। तो अम्मा जान ये अगर एक पुड़िया हमें मिल जाती। हाय कमबख्त बुड्ढे हैं, आए हाय बुड्ढे तेरा नाज जाए, तेरी लाते कब्र में है, कंधों पे तेरे मलकल मौत सवार है और तू मुझे अम्मा जान कह रहा है। आई मेरी उम्र क्या है जो तूने मुझे अम्मा जान कहा है? कमबख्त अपनी शक्ल देख, अपने सफ़ेद बाल देख, अपनी चेहरे की झुर्रियाँ देख और मुझे अम्मा कह रहा है। अरे तूने मुझे अम्मा कैसे कहा? अरे लाइयो मेरा झाड़ू। इससे पहले कि अम्मा झाड़ू घुमाती, उन बुज़ुर्ग के दोनों बेटों ने अपने बाप को दोनों हाथों से पकड़ा और रफू चक्कर हो लिए। अब अम्मा ने जो झाड़ू पकड़ी हुई थी वो झाड़ू पकड़े पकड़े घुमाई और शेख चिल्ली को खूंखार नज़रों से देखा और बोली, हाय हाय कमबख्त, उस वक़्त तो मैंने झूठ झाड़ बोल के तेरी बचत करवा ली, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आई नास पीटे, मैंने पे झाड़ू पीटे पहले ही कहा था कि मतब वतब को छोड़ दे, किसी को उल्टी सीधी दवा दे दी तो मर जाएगा। आई वो मर जाता बुढ़ा है, सटक जाता वो दुनिया से
और तुझे फांसी हो जाती कमबख्त। ये तो मैंने झूठम झाट तुझे बचा लिया, अब नहीं छोड़ूंगी भाई, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। अम्मा ने खूब पिटाई की शेख चिल्ली की, और शेख चिल्ली चिल्लाते रहे, अरे अम्मा क्या हो गया, हकीम को सब महल्ले वालों के सामने मार रही हो, किस कदर बुरी बात है अम्मा, कुछ तो ख्याल कर लो। अरे हटा, काहे का हकीम कमबख्त, तूने तो रुस्वा कर दिया मुझे महल्ले में, अब नहीं छोड़ूंगी। आखिर महल्ले वालों ने शेख चिल्ली को अम्मा से बचा ही लिया, और शेख चिल्ली जो है वो छुपते छुपाते घर के एक कोने में बैठ गए। जब रात का टाइम आया तो अम्मा को शेख चिल्ली को देख के तरस आया। वो उठी, उन्होंने जल्दी जल्दी गरमा गरम हल्दी का दूध बनाया। उसके बाद शेख चिल्ली के पास आई, उसे दूध पिलाया और उसके ज़ख्मों को सेंकते हुए बोली, आय हाय बेटा, कब सुधरेगा तू, हैं देख किस कदर लोगों से भी पिट लिया और मैंने भी तुझे पीट दिया, गुस्सा आ रहा था मुझे। अरे बेटा ऐसी हरकतें नहीं कर, मैं तुझे 1000 दफ़ा समझा ही रही हूँ, समझाए समझाए थक गई हूँ कि बेटा ऐसी ऑलफुल हरकतें मत कर, हैं कोई मार जाएगा, अरे कोई मार देगा, क्या होगा अल्लाह जाने, क्या होगा तो मेरा क्या होगा, है बेटा। अम्मा आप भी बस अजीब सी बातें करती हैं। शेख चिल्ली ने अम्मा के दुपट्टे में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, ठीक है अम्मा, अब जैसे आप कहेंगी ना आपका बच्चा वैसे ही कहेगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, ऐसा कर कोई हुनर सीख ले, हैं कोई ना कोई हुनर सीख लीजिए। चलो अम्मा, अभी तो रात हो रही है, सुबह सीख लूँगा, हैं ठीक है ना अम्मा, अब नहीं करूँगा भाई, जो आप बोलेंगी ना वही करूँगा। हाय मैं सदके जाऊँ मेरे बच्चे, हैं आय हाय मेरा बच्चा सदके में वारी। उसके बाद शेख चिल्ली ने 1 हफ्ते तक अम्मा की बात पर अमल किया। अब अगले हफ्ते क्या होता है फिर देखिए।